Okay, so single source, shortest path. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्पैनिंग ट्री. In the start we studied spanning tree. Spanning tree निकालने के दो तरीके हैं. सबसे पहले स्पैनिंग ट्री क्या होता है हल्का सा रिकैप कर लेते हैं और फिर हम डाइजेस्ट्रा को आज पढ़ेंगे और कंप्लीट भी इंशाल्लाह कर लेंगे. What is spanning tree? Nada Muhammad, yes. All nodes are connected, number of edges are n minus 1 and all nodes belongs to the same graph, previous graph. Yes. Muhammad Mahmood Wirk. What is spanning tree? Sir, all nodes connected. Number of edges are n minus 1. All edges belong to the above graph. Yes. All the nodes are connected. Number of edges are n minus 1. All the nodes belong to the same graph. So this is called spanning tree. Spanning tree निकालने के दो algorithms हैं और वो कौन-कौन से हैं? Raise your hand. Mohammad Adnan, yes. Sir, DFS or BFS. BFS breadth first search and DFS depth first search. Yes, DFS and BFS. DFS is depth first search and BFS is breadth first search. So breadth first search and then depth first. Yes, anybody else? What is minimum spanning tree? Minimum spanning tree क्या होता है? Mohammad Mahmood Wirk, yes sir. Sir, spanning tree with minimum weights. Simple and correct answer. Spanning tree with minimum weight. Nada Muhammad. So it should be a spanning tree and it should have a minimum weight. Yes. Spanning tree with a minimum weight is called minimum spanning tree. और वो कौन से दो algorithms हैं जिससे हम minimum spanning tree मालूम करते हैं? Hamna Irfan, yes. Kruskal algorithm and Prim's algorithm. Kruskal and Kruskal algorithm. Kruskal and Prim. Kruskal and Prims. दो एल्गोरिथम्स हैं जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. एक का नाम है क्रुस्कॉल और दूसरे का नाम है प्रिम्स. यहां तक ठीक आ गए हम. सो नाउ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है? रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक. हमना इरफान, यस. Digestra. Digestra. Simple, short and correct answer. Digestra. Digestra एल्गोरिथम हम आज पढ़ेंगे. आज हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम. मेरा आपसे सवाल है कि अगर ग्राफ अनवेटेड और ग्राफ अगर अनवेटेड हो और अनडायरेक्टेड हो और हमने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो, so if we want to find single source shortest path for undirected and unweighted graph, what is the efficient algorithm? If you want to find the single source shortest path for undirected unweighted graph, what is the
efficient algorithm do that? तो बता सकता है? Mohammad Mahmood, yes. Mohammad Mahmood, जोर से बताएंगे. Sir, Dijkstra algorithm. Dijkstra algorithm. Dijkstra algorithm से हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम क्या होगा? नदा मोहम्मद. अहमद रजा. मेरे ख्याल में बस पर थोड़ा जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही. सर मेरे ख्याल में बर्थ पर सर्च. यस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, BFS. अगर हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ का निकालना चाहते हैं, तो the efficient algorithm is breadth first search. The most efficient algorithm is breadth first search. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो. जी, अहमद रजा. यहाँ तक किसी को भी कोई सवाल है तो पूछ ले. Okay, so we starting with Dijkstra, जो कि हमने आज इसका हमारा टॉपिक है. Dijkstra एल्गोरिथम को करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये वही एग्जांपल है जो हमने प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए की थी. Dijkstra में हम एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, बाकी सब कुछ सिमिलर है एज प्रिम्स एल्गोरिथम. Dijkstra is similar to Prim's algorithm, but with minor modification. Dijkstra algorithm is similar to Prim's algorithm, but with minor modification. हमने V1 नोड को बकेट में डाल दिया. V1 नोड को हमने बकेट में डाल दिया. प्रिम्स एल्गोरिथम में किसी भी नोड को बकेट में डालने के बाद हम क्या करते थे? What we used to do after adding a node in the bucket? Update the weight. Update the weights or Add the minimum weight into the bucket. add the node with the minimum weight. तो अब भी हम यही करेंगे. Update the weight, add the node with the minimum weight. दोबारा से कोई बता सकता है कि नोड को बकेट में डालने के बाद वो कौन से दो स्टेप्स हैं जो हम करते हैं? एनी वन अगेन? हमना, इरफान. यस. Update the weights and add the node with minimum weight into the bucket. Update the weights. Yes. Update the weight, add the node with minimum weight. Mohammad Mahmood. Yes. Sir, update the weights and add the node with minimum weights. Yes. Update the weights, add the node with the minimum weight. यही काम हमने इसमें भी करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्क आएगा और वो ये होगा कि वेट को अपडेट करने का तरीका थोड़ा सा फर्क होगा. बस यहाँ पर एक ही फर्क आएगा, वेट को अपडेट करने का तरीका थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी सब कुछ सेम है. यहाँ पर एक ही फर्क आएगा, वेट्स को अपडेट करने का तरीका थोड़ा फर्क होगा, बाकी सब सिमिलर है. तो अपडेट वेट कैसे करेंगे? 4 प्लस, यहाँ पे पहले क्या करते थे? 4. अब हम करेंगे 4 प्लस, इस नोड का क्या वेट है? 0. 4 प्लस 0 4. तो यहाँ पर इंफिनिटी की बजाय 4 लिख देंगे. 8 प्लस 0 इज 8. यहाँ इंफिनिटी की बजाय 8 लिख देंगे. Now which is the smallest node, V2 or V7? V2. V2.
V2 को हम बकेट में डाल देंगे, so we got this V2 in the bucket. V2 के ऊपर 4 आ जाएगा, V7 पे 8 आ जाएगा. Now what are those two steps? नोट को बकेट में डाल दिया. What are those two steps, guys? Hurry up. Nada Mohammed, yes. Sir, update the weight and add the node with minimum weight. Update the weight and add the node with the minimum weight. Weight को अपडेट करेंगे तो V2 से V3 कितना डिस्टेंस बनेगा? 8 plus 4 12. V2 से V7 कितना बन रहा है डिस्टेंस? 11 plus 4 15. लेकिन 15 is greater than 8, so we will not keep it. और कोई नोट जो अपडेट की जा सकती हो? नहीं. नाउ जो सबसे कम नोट का वेट है वो 8 है. एड द नोट विद मिनिमम वेट, तो V7 को हम ऐड कर लेंगे. V7 will be added. V7 is added. V7 is added. Now update the weights. Now we have two steps. What are those two steps? Now we have those two steps. What are those two steps to follow? Safa Akbar, yes. Update the weights and add the node with the minimum weight. Update the weights and add the node with the minimum weight. Simple and short answer. So now update weight करने लगे हैं हम. किसको update करेंगे? V7 और V8 कितना डिस्टेंस है? 8 plus 1 9. V8 में 9 आ जाएगा. V7 से V5 कितना डिस्टेंस है? 8 plus 7 15. इंफिनिटी की बजाय 15 आ जाएगा. And so on. Safa Akbar. Mohammed Mahmood. सर V8 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका मिनिमम वेट बन रहा है 9. The node with the minimum weight is V8. तो हम V8 को सेलेक्ट करेंगे. ये देखिए हमने V8 को बकेट में डाल दिया और V8 को बकेट में डालने के बाद now we have two steps. What are those two steps? Again two steps. Mohammed Mahmood with yes. Sir, update the weights and add. Update the weights and add the node with minimum weight. Weights को हमने अपडेट करना है तो पहली वेट अपडेट कौन सी नोड होगी कोई बता सकता है? कौन सी नोड अपडेट होगी? V9 में क्या आ जाएगा? 9 plus 2 11. मोहम्मद महमूद विर. और कौन सी नोड अपडेट होगी? सर V5. लेकिन अगर हम V5 को चेक करें तो 9 plus 6 15. तो 15 ही रहेगा. अपडेट उसको करने की जरूरत नहीं है. और कोई नोड है जो अपडेट होगी? एनी अदर नोड जो कि अपडेट होगी? और कोई नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज कौन सी नोड सेलेक्ट होगी विद द मिनिमम वेट? कौन सी नोड है जिसका मिनिमम वेट है? V9. सर नदा मोहम्मद यस. V9 select होगी. V9. So we will put V9 in the bucket. We will put V9 in the bucket. V9 को bucket में डालने के बाद what are the steps, two steps which we want to do? Mohammed Mahmood will yes. Update the weights and add the node with minimum weight.
Update the weights, add the node with the minimum weight. Simple and short answer. अगर हम weight को update करें तो कौन सी node update होगी? Raise your hand. Mohammed Mahmood will guess. Sir, V6 or V11. V6. V11 तो कोई है नहीं. V6 or V4. Okay, आप this is V4. Sorry, this sir. is V6. So 11 plus 10, 21 is V6. 11 plus 14, 25 is V4. Now we will select the node with minimum weight. And what is that node? Raise your hand if you will speak. Yes, Nada Muhammad. V3. V3, yes. So V3 will be added. V3 will be added in the bucket. V3 will be added in the bucket. Any other node? Now we will do two steps. V3 को हमने bucket में add कर दिया. Now we will do two steps. What are those two steps? What are those two steps? Mahmood will yes. Sir, update the weights and add the node with minimum weights. Update the weights With and minimum add weight. the node with minimum weight. Update the weights, add the node with minimum weight. तो कौन सी नोड अपडेट करेंगे तो बता सकता है? Anyone? हमना इरफान. V5 and V4. V5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमना? 14. 12 plus 2, 14. 14 और V4 की वैल्यू क्या हो जाएगी नदा? 19. 12 plus 19. 7. 12 plus 7, 19 is lesser than 25. We put 19 here. We will add the node with minimum weight, and the node with minimum weight is V5. G. Nada? So V5. V5. So what we will do is we will add this node V5. ये node V5 हमने अपडेट कर ली. V5 को ऐड करने के बाद we have two steps. Select the node with the minimum, update the weights and select the node with minimum weight. Update the weight and select the node with minimum weight. कोई node ऐसी है जिसको अपडेट किया जा सके? कोई ऐसी नोड जिसके वेट्स को अपडेट किया जा सके? नो. कोई ऐसी नोड नहीं है जिसके वेट को अपडेट किया जा सके. So we will select the node with the minimum weight. And what is that node? Safa. Sir, it's V4. It's V4. Now I have a question. नदा आप बताएं कि V4 को हम किस एज के साथ ऐड करेंगे? V3 V4 इस एज वाले इसको इस एज पे ऐड करेंगे या V4 को हम ऐड करेंगे V9 V4 वाले एज से? So V9 V4. V9 V4 वाले एज से ऐड करेंगे. सफा आप बताएं. जी जैन खालिद आप बताएं. So V3 V4. V3 V4 वाले एज से ऐड करेंगे. मोहम्मद महमूद आप बताएं. Yes, sir, V3 V4 से करेंगे क्योंकि वो minimum weight है, V3 sir. V4. मोहम्मद महमूद आप बताएं. Sir, V3 और V4 sir. V3 V4 से करेंगे. मोहम्मद अब्दुल्ला.
सर V3 और V4 से करेंगे क्योंकि सर उनको ऐड करके मिनिमम वेट आ रहा है हमारे पास। Okay, so we will add this node from V3 to V4, यानी ये edge डबल करेंगे क्योंकि 7 plus 12 19 था, 11 plus 14 25 था, तो we are gonna add this edge and V4. So V4 is added. अब वही दो स्टेप करने हैं और वो दो स्टेप कौन से हैं, कौन बताएगा? सफा आप बता दो। Update the weights and add the nodes with the minimum weight. Update the weights and add the node with minimum weight. And now we have to update it. 11 plus 10 is 21. 19 plus 9 is 28. तो हम यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21. यहाँ पर 21 आ जाएगा और हम जब उसको ऐड करेंगे किस नोड्स के थ्रू ऐड करेंगे? बकेट में V6. We will add V6 because V6 has the minimum weight from the edge V9. So V9 V6 ये edge लेंगे हम और V6 को ऐड करेंगे। हम V4 V6 से भी ऐड कर सकते थे, लेकिन V4 V6 से हमने ऐड नहीं किया। इसकी क्या वजह है? सफा? Because that's greater than the other one. Yes, because the edge plus this 9 plus 19 is 28, which is greater than 21. So neither we have updated the weight from here, nor we will select this node and this edge. We will select this node and this edge. So this edge is selected and we have double it, it makes it 10. So ये जो nodes और आपको double edges वाला graph नजर आ रहा है, this is single source shortest path graph. ये जो nodes और double edges वाला graph नजर आ रहा है, this is single source shortest path graph. अगर आप इस ग्राफ में से एक एक एज रिमूव करते जाएं और डबल एज भी रिमूव कर दें, यानी हर नोड हर एज को एक एक बार रिमूव कर दें, तो ये जो सिंगल एज होगा वो खत्म हो जाएगा और डबल एज जो है वो एक रह जाएगा और आपके पास ज्यादा क्लियर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ वाला डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम बन जाएगा। और इसको आप वैसे भी देख सकते हैं, इसको आप वैसे भी देख सकते हैं। इसमें एक चीज आप नोट करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये स्पैनिंग ट्री है, तो आप क्या जवाब देंगे? सफा अकबर। Sir, it's not a spamming tree because there is loops over here, right? Like, so it's not a spamming tree. Can you locate any loop? Can you find any loop? Wait, the two lines are the only ones that Yes. you took, right? Okay, yeah. So there's no loop. So I think it is a spamming tree. Okay, Mohammed Mahmood with. Is it a spanning tree as well? Yes, sir. Yes, it is a spanning tree. It is a spanning tree. Is it a minimum spanning tree? Is it a minimum spanning tree as well? Yes, sir. Anyone? Is it a minimum spanning tree as well? Safa? Sir, because it's the single source shortest path, so the weights would be the least, right? So that would Okay. make it a minimum spanning tree. Okay, Nada, you tell me. Sir, it is a minimum spanning tree. Single It is a- source shopping part. So this single source shortest path tree is a minimum spanning tree. Mohammed Mahmood with. Can you tell me? Yes, sir. Yes, sir. It is a minimum spanning tree, sir. It is a minimum spanning tree. Anyone else? Anyone else? Raise your hand. It is a minimum spanning tree or not? Zain Khalid. Yes, Yes, sir. It is a minimum spanning tree. it is a minimum spanning tree. Anyone else?
Tansir Nasir. Yes, sir. It is a minimum spanning tree. It is a minimum spanning tree. Ahmed Raza. Sir, it is not minimum spanning tree. It is not a minimum spanning tree. ये minimum spanning tree नहीं है. It is not a minimum spanning tree. अगर ये minimum spanning tree होता तो इसके weights different होते. हमने ये 4 मिस कर दिया, हम 4 ले चुके होते और हम ये 9 या 14 ना लेते. सो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं है. नॉर्मली जो डाइजेस्टर अप्लाई करके सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ आएगा वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो भी सकता है और हो सकता है ना हो. इट इज नॉट गारंटेड, लेकिन वो स्पैनिंग ट्री बहरहाल जरूर होगा. एक और चीज, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में V1 से V3, V1 से V3 जाने का कोई तरीका है? V1 to V2, V2 to V3. डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है? 12. V1 से V3 तक जाने का जो डिस्टेंस है वो 12 है और इससे कम में आप नहीं पहुंच सकते. V1 से V2, V2 से V3 12 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, इससे कम में नहीं पहुंच सकते. V1 से V7, V7 से V5, V5 से V3 आएंगे तो डिस्टेंस कितना बनेगा? 8, 7, 15, 15 plus 2, 17. This is relatively a larger distance. V1 से V4 तक जाने में you have a distance of 19. V1 से V4 तक जाने में you have a distance of 19. Because if you follow the path 8 plus 4, 12 plus 7, 19, this is the path and you get 19. On the other hand, if you don't follow V1 to V4, if you take V7 to V1 to V7, V7 to V5, V5 to V3, V3 to V4, the distance is huge because 8 plus 7 is 15, 15 plus 2 is 17, plus 7 is 24. So this distance is the shortest and this is single source shortest path distance. यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ ले. Any questions? Yes, then Khalid. तो सर ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा ना, क्योंकि हमने सबसे वो मिनिमम वेट हमने बकेट के अंदर ऐड किए थे, तो जो इस हमारे ग्राफ में जो सबसे ज्यादा मिनिमम था वेट हमने उसी को ही तो ऐड किया था. ओके, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक ग्राफ की जिस पर आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो वो डिफरेंट होगा और अगर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे तो वो डिफरेंट होगा. ये बड़ा ग्राफ है, इसको देखना आपको मुश्किल लग रहा है, मैं एक छोटा ग्राफ बना देता हूँ. वैसे तो एक तरीका ये है कि आप इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लें, यू विल हैव अ डिफरेंट ग्राफ. अगर आप इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल लें, यू विल हैव अ डिफरेंट ग्राफ. लेकिन मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ एक ऐसे ग्राफ की जिसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ दोनों डिफरेंट आएंगे, and you will be able to appreciate that these two are not necessarily same. यहाँ पर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का रियल लाइफ में क्या फायदा है, कोई बता सकता है? What is the advantage of single source shortest path in real life? What is the advantage of single source shortest path in real life? Assume करें कि V1 UMT है और V4 फैसल टाउन है. V1 से V4 तक आपने ऊबर पे जाना है. एक तो डिस्टेंस ये है V1 से V7, V7 से V8, V8 से V9 और बल्कि V1 से V7, V8, V9 और V9 से V4. ये कितना डिस्टेंस बन रहा है? 8 plus 1 9, 9 plus 2 11, 11 plus 14 25. लेकिन सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है. V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4 19 डिस्टेंस दे रहा है. तो आप ऊबर पर जो गूगल मैप्स है that would use Dijkstra algorithm and find the minimum single source shortest path. अगर V1 से V6 पे जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस 21 है, आपको गिवन है. लेट्स से V1 से आपने अल्लामा इकबाल टाउन जाना है तो उसने बता दिया डिस्टेंस इज 21.
Now you can easily follow the steps. Now you can easily follow the step. V1 to V7, V7 to V8, V8 to V9, V9 to V6, 21. और किसी भी तरह से आप इधर पहुंचे, V1 से V2, V2 से V3, V3 से V9, V9 से V6, डिस्टेंस ज्यादा होगा. V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V6, डिस्टेंस ज्यादा होगा. मिनिमम डिस्टेंस पहुंचने का तरीका वही है जो डाइजेस्ट्रा ने आपको दिया है. V1 to V7, V7 to V8, V8 to V9, V9 to V6, and this is the distance 21. Any other question? Nada Mohammed, yes. सर मुझे ये पूछना है कि जो हमारे पास BSF होता है वो भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही बताता है, तो वो हमेशा क्या मिनिमम ही बताएगा कि हमें डाइजेस्टर यूज करना चाहिए? ब्रेडथ फर्स्ट सर्च का बुनियादी मकसद स्पैनिंग ट्री मालूम करना है, लेकिन अनडायरेक्टेड अनवेटेड ग्राफ में वो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ दे देता है, और वो डेफिनेटली वो भी मिनिमम डिस्टेंस ही देगा फ्रॉम सिंगल सोर्स टू ऑल द अदर नोड्स. लेकिन वेटेड ग्राफ के अंदर ब्रेडथ फर्स्ट सर्च सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देता. उसके लिए आपको डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा. You have to apply the Dijkstra algorithm for that. यहाँ तक सही है? Okay, so now this is a graph. ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ. इस पे आप इस नोड पे आप डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई करें और मुझे व्हाट्सएप करें. इस पर आप डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई करें एंड सेंड द आंसर टू मी. हरी अप गाइस, बी क्विक, टाइम कम है. व्हाट्सएप पे हरी अप हरी अप हरी अप. जिसने कर लिया व्हाट्सएप करे. हरी अप. All of you will be given marks in class exercise. Otherwise, you will lose the marks. Hurry up, guys.
Are you guys? जी बॉय सेक्शन में हसाम अली राना, यस इट्स करेक्ट। मोहम्मद महमूद वर्क, आपने डाइजेस्टर अप्लाई नहीं किया, शायद आपने डायरेक्ट उसको दिखा दिया है, इसलिए आपका जवाब सही नहीं है। जैन खालिद, इट्स करेक्ट। मोहम्मद अब्दुल्ला, आपने डबल लाइंस लगाई नहीं, तो हमें पता नहीं चल सकता कि क्या सही है क्या गलत। फ्रॉम द गर्ल साइड सफा ने सबसे पहले किया है, और नो सफा इट्स रॉन्ग। नदा, यस नदा इट्स करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, दिस क्वेश्चन इज अ बिट ट्रिकी। हमना, yes but you have not, yes Hamna it's correct. So apply the digestra, don't find the result without applying digestra, apply the digestra and then get the results. So if you do that you will realize कि हमने अगर digestra लगाएंगे तो this will be the answer. टाइम कम है, मैं आंसर दे देता हूं। This will be 1 and then if these two are in the bucket we want to go from 1 to 3. If we want to go from 1 to 3 from this node, the distance is 99. If we go from 1 to 2, 2 to 3, the distance is 100. So we will go from 1 to 3. And that's how we do. So this is 50. And this is 100, 99. And this is digestra. अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि इसी लेफ्ट वाले ग्राफ पर, अगर आपसे कहा जाए कि इसी ग्राफ पर जो लेफ्ट पर आपको गिवन है, इसी ग्राफ पर जो आपको लेफ्ट पर गिवन है, उस पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री का प्रिम्स एल्गोरिथम लगा लें। प्रिम्स एल्गोरिथम लगा लें, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालें। क्या निकालें? मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो आपका जवाब क्या होगा? हरी अप, जल्दी से भेजें। From the girl side, yes.
नदा नदा आपने दोबारा भेजा है, दिस इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री लगा के भेजा है आपने, क्या किया है? सर मिनिमम स्पैनिंग ट्री भेजे। यस नदा, हमना बिल्कुल सही है, और सफा आपने बिल्कुल सही किया है। आपने पहले वाला जो सॉल्यूशन भेजा था वो मेरे ख्याल में मिनिमम स्पैनिंग ट्री भेज दिया था पहले भी, आपने अगला सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था। मोहम्मद अब्दुल्ला, नो, यस जैन खालिद, इट्स करेक्ट। सो अगर हम इस पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री लगाएंगे उस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, यानी Prim's algorithm के थ्रू, तो you would realize that the answer is this one. The answer is this one. The answer is 50, and here you go with 50. And this is minimum spanning tree. So अगर आप गौर करें तो डाइजेस्ट्रा से ये जो एल्गोरिथम मिला है ये और मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो मिला, ये दोनों फर्क है। तो इसलिए डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम जरूरी नहीं है कि आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी दे, क्योंकि इस केस में दिस इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, दिस इज नॉट मिनिमम स्पैनिंग ट्री, but this is single source shortest path, and this is not single source shortest path, but this is minimum spanning tree. यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। Any question so far? Okay, so अब मैं 5 सेकंड्स के लिए इसको बंद करूंगा और दोबारा चलाऊंगा, और आप लोग मुझे फीडबैक देंगे आज के लेक्चर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30 सेकंड में ये दोबारा चल जाएगा, तो मैं ये बंद कर रहा हूँ, दोबारा चला रहा हूँ। ओके ओके सर। Okay. फीडबैक देना जरूरी है, जो फीडबैक 30 पार्टिसिपेंट अगर इससे कम होंगे फीडबैक नहीं देंगे, आई विल डिडक्ट योर मार्क्स और आई विल टेक सरप्राइज क्विज, सो बी देयर ऑल ऑफ यू।